हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और आज मैं बात करने वाला हूं एक शिप बिल्डिंग बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को हमने 2024 में एनालाइज किया था। एट दैट टाइम ये कंपनी अपने कलर्स चेंज कर रही थी एंड दैट वाज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग पोस्ट अक्टूबर, देन द कंपनी हैज चेंज दिस कलर कंप्लीटली। सो पहले ये कंपनी एक ड्रेजिंग कंपनी हुआ करती थी और नाउ ये कंपनी एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एक अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, देन यू शुड फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ द टैम। एंड टैम एक्सपेंशन होता है जब प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है या बिजनेस लाइन एक्सपेंड होती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है इस कंपनी की लाइफ में भी। हर कंपनी की एक जर्नी होती है जब कंपनी सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी की तरफ मूव करती है। और इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बट स्टिल इट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मरीन सर्विसेज। फर्स्ट दिस कंपनी वाज अ ड्रेजिंग कंपनी, an engineering company. Now this company is developing itself in a developer mode. क्या है ये developer mode and why this is happening? Whether this is good for this company or not, we'll figure out in just next 20 to 25 minutes. So stay tuned with me for this journey, which is Knowledge Marine Engineering Works. Take this as an educational video. It's not a stock recommendation. I am holding this company, and that's why my views can be biased. So take everything with a pinch of salt. अगर आपने अभी तक KMEW का हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, then go and check back that video because that will give you the fundamental view where the story began and what is feasible now from here. ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। पहले हम लोगों ने एक थीसिस पे इन्वेस्ट किया था. नाउ द थीसिस हैज स्लाइटली चेंज, so we carry on to the second part of the thesis. But before we go, just for the people who have not seen the last video, just a quick overview of the company. That is a fleet company which owns vessels which are of specialized vessels which are used for mostly for your dredging purposes, and some are port ancillary craft. So this time we will be focusing more on slightly more on the port ancillary craft. Last time we talked a lot about the dredger and all this work and all, but some development has happened. That's why we are focusing on the second part of it. It's akin to like Titagar wagon में हम लोगों ने जैसे पहले रेलवे पे पूरा पूरा रेलवे वैगन पे बात की. Now we are focusing on metro. So it's a kind of that story, just to draw a parallel. 10 ports ancillary crafts थे इसके पास FY24 में. They were making 3 additional vessels to increase the capacity. Right now I'm giving you the recap of FY24 numbers so that you see the change. So the core operation was this dredging and environmental cleanup and port expansion projects and dam desiltation programs. So dam desiltation is basically आप डैम बनाते हो तो बहुत मिट्टी होती है, उसको सिल्ट बोलते हैं. तो डैम में बहुत बार मिट्टियां गिरती रहती हैं. इस डैम इज इक्विवेलेंट टू कि आपका एक पोर्ट के जैसा ही होता है, तो वहां पे भी मिट्टी अपने मिट्टी को वापस हटाना पड़ता है टाइम इन अगेन. So that is dam desiltation. So lots more of river interlink and so many types of new water linked activity has started happening in country last 5-10 years. So that's why we ourselves don't know कि कहाँ पे क्या use होगा, because the dam itself is very vast and very micro to certain extent. That I mean, if you look around, आपके hometown में कुछ हो रहा होगा which we are not aware of, something like that. So it's slightly a difficult space to really give a micro view, but I can give you the macro view. So capital is raising is something which is I've explained कि आपको नया navigation channel create करने के लिए चाहिए. And maintenance raising is continuous removal of the sediment to maintain optimal channel depth and navigability. So it's as simple as that. But we'll go in numbers this time. Capital, because last time when we were doing this, we had a very micro view of maintenance dredging जब मैंने last video बनाया था, because at that time this company was largely a maintenance dredging company, but the things have slightly changed for the better. So major projects and strategic clientele they won was in Myanmar, Kolkata, Mangrove Fishing Harbour. So basically these are port craft wala cheez hai, jo third wala project hai. Development of critical fishing infrastructure. So it's something like Texmaco doing signaling work. So wagon बना रहे हैं, चलो signaling भी कर लेते हैं, something like that. Or if you gone through the Titagar का recent order, तो वो पोर्ट वो उन्होंने जो मेट्रो मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट जीता है उसमें साथ ही साथ वो भी सिग्नलिंग भी वो करके दे रहे हैं. सो इज समथिंग लाइक बंडल्ड कि चलो आप जो जो आप बना सकते हो, सिंस यू आर मेकिंग द मेन मेट्रो, सो यू कैन ऑल्सो डू द एंसिलरी थिंग, सो दैट वुड बी चीपर फॉर इवन गवर्नमेंट फॉर यू टू अलाउिंग यू टू डू दैट. सो लाइकवाइज इनके पास भी कुछ 78 करोड़ का ऑर्डर विच इज काइंड ऑफ
काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगे, दिस इज नॉट वेरी टेक्निकल स्टफ, बट सिंस दे आर एक्सपर्ट तो उनको ये सब प्रोजेक्ट मिले. And these are more of a licensing based order, this look like. Most importantly the river Ganga project, the INW1, जिसमें मैंने बात की थी. फिर दूसरा एक उन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में एक ऑर्डर जीता था, विच वाज 7-year कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें दे एंटर्ड इनटू टग्स. सो टग्स बेसिकली ये वाटर फ्लोटिंग वेसल्स होते हैं. इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे बार्जेज एंड टग्स यूज होते हैं. कोई भी आप पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें यू नीड स्पेशल पर्पस वेसल. सो वो आजकल बहुत टग्स की डिमांड है, उस पर भी बात करेंगे. एंड देर आर सम पेट्रोल वेसल्स विच इज अ पार्ट ऑफ अ शिप बिल्डिंग एक्टिविटी. तो ये इन्होंने एक पोर्ट के लिए एक पेट्रोल वेसल्स वगैरह बनाया. सो व्हाट हैज हैपेंड सिंस देन इज दैट दिस कंपनी which has transitioned from a port focused player to a diversified marine infrastructure solution company. So अब ये infrastructure solution company बन गई. So पहले ये basically they were trying to do whatever work port authorities are allowing them to do, so which requires certain solutions. जैसे कि अभी हमने recent order में दिख रहा है, जैसे yacht चलाने की बात कर रहे हो, so they are getting into PPP mode, कि not just building but maintaining it for a certain long period of time, जब तक ब्रेक इवन हो और पैसे बने और IRR बने इन ऑल दोस थिंग्स. सो दे आर गेटिंग इनटू डेवलपर मोड, सो टू से. तो पहले ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू डेवलपिंग कंट्री. समथिंग लाइक L&T पहले रोड्स बनाती थी, नाउ L&T इज आल्सो अ रोड डेवलपर आल्सो. L&T owns the road also, so it's that kind of transition, which is very legitimate, और ऐसा ही होता है. That's a part of the game. So उसमें अब क्या हो रहा है, तो दैट्स अ टग बिल्डिंग इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, एंड चार्टरिंग. तो हम लोगों ने डीप इंडस्ट्री पे भी जब कवर किया था तो मैनेजमेंट से मिला था, तो चार्टर हायर एक नया टर्म उन लोगों ने एक कॉइन किया था. सो चार्टर हायर इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि यू काइंड ऑफ गिव योर वेसल टू अथॉरिटीज, कि भाई मेरा ये वेसल है, आप यूज करो और उसका रेंटल दो, टाइप सॉर्ट ऑफ. तो उसको चार्टर हायर बोलते हैं. चार्टरिंग इज समथिंग लाइक दैट, बट टग बिल्डिंग इज समथिंग you build for yourself. So they are expanding into high capacity tug construction and long term chartering opportunity across major ports. तो अभी ये सारा कुछ वेरी इनिशियल स्टेज में ही है. चार्टरिंग अपॉर्चुनिटी आर नॉट दैट मच. इवन दीप के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी एक वेसल पे खेल रहा है. तो इट्स नॉट कि बहुत सारी डील आने वाली है, बहुत सारे काम होने वाले हैं. इनलैंड वाटर में तो स्केल अप हो गया, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको डिटेल में. Then green propulsion ship. So abhi ye this is a transition. So actually very few of you would know that shipping is a highly polluting industry. इंडिया में जो अलांग करके एक जगह है गुजरात में, जो एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकेज शिप ग्रेवयार्ड है. तो we don't know it because हमें हाईलाइट नहीं हुआ है because of a PR reason and ESG reason, but we are a dump yard for whole of the Asia for ship breakage. और उसमें बहुत सारे टॉक्सिक एसिड और गैसेज और वो सब चीजें निकलती है. तो शिपिंग इज अ वेरी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री. तो एक जगह तो एक तो आप शिप जब बना रहे हो तो आप उसमें स्टील बना रहे हो, एलॉय बना रहे हो, तो उसमें एक तो उसका जो कार्बन इंटेंसिटी काफी हाई है क्योंकि आप पावर कंज्यूम करते हो. वो तो एक चलो मैन्युफैक्चरिंग वाला एंगल हो गया, बट उसको रिसाइकिल करने जाओगे तो उसमें भी आप टॉक्सिसिटी फैला रहे हो. और उसको जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो भी आप क्रूड ऑयल यूज कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्रूड बहुत ज्यादा जो 100 शिप्स होंगे तो उसमें 20-30 शिप तो जस्ट क्रूड लेकर के इधर से उधर घूमते रहते हैं. तो वो क्रूड वेसल्स बहुत ज्यादा है. मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बॉल पार्क नंबर, आई एम नॉट एक्सपर्ट. सो वो क्रूड लेके चल रहे हैं तो क्रूड यूज करेंगे. इट्स अ वेरी सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम कि कौन सा फ्यूल यूज कर रहा है. वो उस क्रूड को यूज करने के बजाय वो लोग काफी ज्यादा हेवी सल्फराइज्ड क्रूड वर्जन यूज करते हैं. क्रूड का भी वो वर्जन जो सबसे बेकार है वो यूज करते हैं. वो जैसे होता है ना कि हलवाई जो है वो समोसे में सबसे गंदा वाला तेल डालता है, तो वैसा वाला सीन है. तो वो दे दीज गाइज आर यूजिंग वेरी अ लॉट ऑफ पोल्यूटिंग फ्यूल. तो वो रिफाइंड क्रूड को लेके जाते नहीं है, वो सबसे गंदा क्रूड को यूज करके और गाड़ी चला देते हैं. तो उसके कारण शिपिंग हैज अ वेरी बैड पीआर इन टर्म्स ऑफ ईएसजी. तो मैं जब इससे पहले भी मेथनॉल ट्रेंड को फॉलो कर रहा था 2 साल पहले, तो भी मुझे ये पता चला था कि दे आर ट्राइंग टू लुक एट डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स. फॉर एग्जांपल मेथनॉल बीइंग वन, इथेनॉल पे भी बात आई थी, बट मेथनॉल इज वन. देन इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया वैसे इलेक्ट्रिक ट्रक की बात आई. तो उस समय 2 साल पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी. आई थॉट कि मेथनॉल पे फोकस होगा और हाइड्रोजन पे फोकस होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज एन ऑप्शन. बट
इट सीम्स दैट ओवर लास्ट 2 years गवर्नमेंट हैज चोजन कि नहीं इलेक्ट्रिक करना है, उस पर मैं बात करूंगा। तो ग्रीनिंग करनी है, तो उसमें ये इन लोगों ने दे हैव won a very important and good contract, and that is there is a policy support for green propulsion shift कि अब ग्रीन व्हीकल यूज करो, आई मीन बैटरी ऑपरेटेड यूज करो, सो उसमें भी इसका एंगल आ रहा है। सो दैट हैज हैपेंड विद दिस कंपनी। Then there are policy incentives like capitalizing on favorable regulatory environment। तो हम लोगों ने बात की है इस पे ऑलरेडी अपने वीडियोस में, जब मैंने वाई शिप बिल्डिंग पे वीडियो बनाया था तो बहुत सारी पॉलिसी इंटरवेंशन जो हुई है उस पे मैंने बात की। आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम देयर, but that will kind of improve margin and strengthen order pipeline. And one particular tax incentive I will be talking about, which is very relevant for this company. What has changed is the order book has grown to nearly 2,200 crore. सो पहले जो था टिल मई 2025, पहले क्या मतलब अभी जस्ट 6 महीने पहले ही दे हैड ऑर्डर बुक ऑफ 881 करोड़, और टाइमलाइन इज रफली माई गेस इज 3 to 4 years। 200 करोड़ का उनका एनुअल स्ट्राइक रेट है, तो ये 4 साल का ऑर्डर इनको था, बट दिस वाज मई 2025। अभी लास्ट 6 मंथ में जस्ट इन अक्टूबर itself they have won 3 orders। one is making a dredger and doing some accommodation boats of 127 crore, and timeline is around 1.5 year। देन लग्जरी क्रूज बोट, वो मैं बात कर रहा था पीपीपी की। तो अभी जस्ट बिफोर दिस पीपीटी आई वाज रीडिंग थ्रू द इंडियन मैरीटाइम विजन, तो उसमें मैंने जब मैं सर्च कर रहा था तो वहाँ पीपीपी के बारे में बहुत ही ये लिखा हुआ है कि हमें वी शुड मूव टू पीपीपी स्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स। काफी एडवोकेसी है, पॉलिसी एडवोकेसी है पीपीपी पे। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स फॉर दिस कंपनी वेयर ही इज गेटिंग इनटू पीपीपी मोड। और भी पहले किया होगा, बट दिस इज वेरी लार्ज, लाइक 800 crore पोटेंशियल फॉर 20 years। सो उसमें पीपीपी में ये होता है कि टेन्योर बहुत बड़ा होता है, 20 years टाइप्स, एंड ओवरऑल डील साइज इज ऑल्सो बिग। सो 881 करोड़ का ऑर्डर बुक है और 800 का बराबर का एक पीपीपी का प्रोजेक्ट है। तो ये अब ये काम इनका चलता रहेगा 20 साल तक, बट इनिशियली अपफ्रंट में काफी क्रूज बनाएंगे, क्रूज बोट या खरीदेंगे बनाएंगे, तो उसमें वो समथिंग लाइक कि टेक्नो इलेक्ट्रिक ने अभी डेटा सेंटर बना रहा है, बाद में वो फिर टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है वो डेटा सेंटर किसी और के लिए बनाएगा, तो अभी वो अपने लिए बना रहा है। सो समथिंग लाइक दैट। सो लग्जरी क्रूज बोट्स आर समथिंग विच दे आर आइंग ऑन, एंड विच इज स्लाइटली एक्सपेरिमेंटल। तो रिस्क भी इसमें है कि मार्केट ऑफ टेक होगा या नहीं। अब वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर के नर्मदा में कुछ रिवर क्रूजिंग कर रहे हैं। I don't know how many people will go there and all those things. That those micro research I have not done. So, but this is over a long period of time. तो शुरुआत में लो IRR होगा, बाद में फिर पैसे बनेंगे, तो कहीं ना कहीं 800 करोड़ तक की पॉसिबिलिटी है। That's the whole point. It could be 600, it could be 400, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट 800 इज मैक्सिमम, एक जो बेसिक नंबर जिसपे अथॉरिटीज एंड दिस कंपनी हैड अग्रीड इतना तक आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। दैट्स देयर। थर्ड विन वाज अ ग्रीन टग, इज अमाउंटिंग अराउंड 385 करोड़। तो वही बैटरी ऑपरेटेड ग्रीन टग उन्होंने जीता है फॉर 15 years। So total order book is 2200 crore, and 200 crore is the top line। So 10x का इसका book to build ratio है, which gives them a visibility of around 10 times of their revenue। तो 10 साल तक इनका काम चल जाएगा if they don't want to grow, but that's not the case। So let's come to the Green Tug Transition Program, which is a program given by Government of India कि ग्रीन करना है हमें सप्लाई चेन। इसका सप्लाई चेन बेसिकली ऑपरेशनल सप्लाई चेन कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दे वांट टू ट्रांजिशन हार्बर टग्स from fossil fuel to green propulsion technologies, including battery electric, hybrid, hydrogen and methanol system। तो वही ये चारों हैं, बट इसमें आई थिंक द फर्स्ट push is given to battery electric, because whatever I know little is that I've seen only electric tugs only, मतलब उस पे काफी इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो टोटल प्रोग्राम आउटले इज 10,000 crore, but it's divided into 2 phases। फर्स्ट वन इज अक्टूबर 2024 टू दिसंबर 2027। इसमें उन्होंने 5 मेजर पोर्ट्स को बोला कि भाई तुम 5 सबसे बड़े हो, तुम्हें पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। जेएनपीटी, डीडी दीनदयाल, पारादीप, चिदम्बरम पोर्ट एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट, और एक और है, 6 पे किया था, 6 का नाम मुझे मिला नहीं। तो इन लोगों को बोला है कि भाई तुम्हें 2 मिनिमम ग्रीन करना है, टग्स खरीदना है, तो या तो हायर करो, प्रोक्योर करो या चार्टर करो। अर्ली फेज इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में वो उसको सपोर्ट करेंगे, सब्सिडी देंगे या कुछ करेंगे, दैट इज नॉट नोन टू मी, बट अमाउंट इज 1000 करोड़ हाउ दे विल गिव।
टू दीज गाइज जो भी खरीद रहा है, जो ग्रीन टग कर रहा है, उसको सब्सिडी टाइप कुछ मिलेगा। सो केएमडब्ल्यू ने इसमें जो 6 में से अभी तक 2 अवार्ड हुए हैं, 5 में से 2 अवार्ड हुए हैं, 3 का बिड येट टू बी ओपनड है। तो उसमें 2 में से 1 इन्होंने एक जीत लिया है, और एक और जो है वो किसी बड़ी कंपनी को मिली है आई थिंक। और कल भी एक न्यूज आई थी, कोचिन शिपयार्ड को एक मिला है। तो मिला के हाँ, कल तक 3 अवार्ड हो गए, एक कोचिन शिपयार्ड को मिला, एक इसको मिला, और एक और किसी स्टैब्लिश प्लेयर को मिला। इट्स लाइक वेरी लार्ज प्लेयर। तो so this was a very big win, क्योंकि ये कोचिन शिपयार्ड को कंप्लीट करके जीत रहा है, सोचो एक तरीके से। so कोचिन शिपयार्ड इज लाइक इज द मास्टर ऑफ द गेम। सो दैट स्टेप itself speaks कि ये बंदा अगर एग्जीक्यूट कर लेता है तो देयर इज नो लिमिट टू ऑर्डर फ्लो, और अगर वो कर लेते हैं so that's why I thought कि this would be good idea। सेकेंड फेज में फिर 30% ऑफ ओवरऑल टग फीड्स एट मेजर पोर्ट्स टू ट्रांजिशन टू ग्रीन पर्पल्स। अभी तो 2 बोला है, बोला अब जितने हैं उसके 30% में बाई 2030 करना है। So there's a significant scale-up opportunity across all major ports that will create a next growth for this company. This company is positioning itself strategically to align with Make in India. That the company has recently won that जो चिदम्बरम पोर्ट है, VOCPA, VO चिदम्बरम पोर्ट एसोसिएशन, वहां पे 60 टन का वो ट्रक ट्रक जीता है। दैट इज वेरी रिमार्केबल। एंड और इसमें भी उन्होंने क्यों जीता, क्योंकि पहले उन्होंने नॉन इलेक्ट्रिक एक टग उन्होंने चिदम्बरम के लिए पहले किया हुआ था वो काम। तो सिंस दे डिड अ नॉर्मल टग देयर, सो दे गेन द एक्सपर्टीज एंड दे गेन द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग अ नॉर्मल टग। तो उसके बाद फिर उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड में भी बिड किया और जीत गए। और आई थिंक वो वीओसीपीए ने उसको इसलिए भी दिया क्योंकि दे न्यू कि दिस गाइस आर सीरियस, दे डोंट लिव इन बिजनेस। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट नहीं किया। तो दे आर सक्सेसफुल। रिकॉर्ड हैज काइंड ऑफ put them into map again and against biggies like Cochin Shipyard. So that reinforced KMEW leadership position in southern India with established relationship across major port authorities. So lot to do with the relationship also, because एक छोटी सी कंपनी को कोई क्यों entertain करेगा? Either they have the technical clarification, that's okay, qualification, but also they need to have right people. Right people should know them, क्योंकि it's not just technical, there are lot many things. So sustainable devices services में भी they have entered to align with India's maritime decarbonization goals. So this इसमें अब कंडीशन क्या है कि कैसे टग होने चाहिए? तो it must be built in India, it must be एक डिजाइन जो है वो पैरामीटर है उसको सर्टिफाई करना चाहिए, and that's opportunities for Indian shipbuilders ecosystem. FY25 में what has happened that this is from their annual report. So उसमें 96% of FY25 revenue was from dredging operation, and they deployed 40 plus crafts for optimal coverage across projects. They were the sole executor without reliance on joint venture, demonstrating operational independence and comprehensive capability. तो पहले वो क्या कर रहे थे, किसी के साथ मिलके कर रहे थे, but as you gain size and muscle, you can yourself bid and win. So that's how this company is growing. So they have disrupted market monopoly by securing a 60-ton Ballard full tug, वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, in Chidambaram port, and they have expanded presence into Paradip, Tuticorin, New Mangalore, and Mumbai ports, which are the large ones. So जहाँ major ports है वहीं पे major action है, so they have a relationship with them. Now they have done a remarkable entry into commercial shipbuilding segments with the acquisition. अब कैसे किया, तो how में आता है कि they have acquired a company called Kamal Marine and Engineering Works Limited, it's a private company. तो उनके पास ये सब जो पोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज और शिप बिल्डिंग की अथॉरिटी थी और लाइसेंसिंग थी, so that's why they got that know-how, technical know-how, and that helped them become vertically integrated in this game. So inland waterway and CSD market entry, they entered into cutter section desert market, acquiring and deploying 9 units for operations in NW1 and NW16, significantly expanding inland waterway opportunities. तो इसमें एक खास बात यह है कि इनकी एसेट यूटिलाइजेशन इज 100%. These guys utilizing their assets fully. So that's a good thing, and that is not something new. वो एक साल पहले भी ऐसे ही था, और actually I've seen in last 3-4 years उनका 100% ही है.
तो वो पूरा अच्छा कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं. So that is in their DNA, and they have got the new line revenue stream by tug building, shipbuilding. So they have broken the monopolistic market segment. तो ग्रीन टग प्रोग्राम में ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी है वो तेरा 30 एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. अभी तो मैंने 6 की बात की, मतलब दो 2 into 6 12 हो सकते हैं. अभी 30 मोर इज एक्सपेक्टेड, टोटल 30 इज एक्सपेक्टेड. सो दैट विल रेंज अराउंड 350 to 400 करोड़ का पर ग्रीन टग कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. सो दैट्स अपॉर्चुनिटी साइज. इसमें कुछ एक भी मिल जाता है तो दैट वुड बी अ साइजेबल बूस्ट. एंड देयर मार्केट शेयर सिनेरियो इज दैट 10 to 15% कैप्चर अगर कर लेते हैं, दैट वुड रिजल्ट इनटू 1600 करोड़ ऑर्डर बुक ओवर 15 इयर्स. ये टग वाले बिजनेस है, तो ऑलरेडी 350 करोड़ का उन्होंने एक कर लिया है. सो सिर्फ इस बिजनेस से 1600 करोड़ ऑर्डर बुक बना सकते हैं अगर हम 30 टग्स की बात कर रहे हैं. तो आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज है दैट इफ यू रियली लाइक आवर वर्क देन यू हैव टू मोर ऑफरिंग टू गेट क्लोजर टू अस. तो साधन प्राइम में आपको एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस आपको मिलती है, एक बिजनेस हम लोग डीप डाइव करते हैं, उसके साथ साथ हम 10 से ज्यादा साधन इंसाइटफुल पोस्ट हर मंथ में शेयर करते हैं विच डेवलप्स योर मार्केट इनसाइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल गेट एक्सेस टू मोर देन 10 प्लस past Sadhan deep dive videos. Under Sadhan Prime, you also get one member only live stream every month where you can ask me questions where you have any doubt or any confusion with respect to our videos, which is generally done on live YouTube live stream. So Sadhan Prime Plus is on top of Sadhan Prime. So whatever I just said about Sadhan Prime is included under Sadhan Prime Plus. ऑल्सो यू विल गेट एक्सेस टू साधन वॉच लिस्ट. हम ऐसे 2 लेटर्स आपके साथ शेयर करते हैं, 2 वॉच लिस्ट शेयर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ पोस्ट which we are looking at right now. Also, you'll get early access to our videos, and most importantly, you'll get 2 members only videos every month. So, 2 businesses को हम dissect करते हैं, उससे आपके साथ share करते हैं. And most importantly, you'll get the full access of Sadhan library, which is more than 25 plus videos into it. And also you'll get more than 10 plus Sadhan insight. And not to forget one members only live stream, which you will also be entitled. बहुत ही डीपली रिसर्च वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोग महीनों रिसर्च करके एक वीडियो बनाते हैं. यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ज्वाइन आवर साधन कम्युनिटी. एक और चीज है यहाँ पे, दैट इज अबाउट कैपिटल रेजिंग वर्सेस मेंटेनेंस रेजिंग. तो ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अभी वो मैरीटाइम विजन वाले डॉक्यूमेंट से निकाला कि जस्ट टू गेट अ बॉल पार्क अंडरस्टैंडिंग मैंने ये नंबर्स निकाले वहां से. लेफ्ट में जो राइट अप है कि ड्रेजिंग इज अनदर एरिया वेयर पीपल कैन बी इवैल्यूएटेड टू ड्राइव एफिशिएंसी. हिस्टोरिकली जो कैपेक्स हुआ है उसमें फॉर एग्जांपल बिटवीन 2012 to 17 अराउंड 126 मिलियन CUM क्यूबिक मीटर ऑफ कैपिटल रेजिंग जो हुआ, उसका जो कॉस्ट था, एक्सपेंडिचर था, वो 35 बिलियन के करीब था. तो जो अपराइट में जो अगर देखेंगे तो मैंने लिखा एक मैट्रिक्स रुपीज कैपेक्स पर मिलियन क्यूबिक मीटर. तो दैट इज रफली 300. तो 300 रुपए पर मिलियन क्यूब, 300 एक्चुअली करोड़ है, एक्चुअली 300 रुपए नहीं है. तो 300 करोड़ पर मिलियन क्यूबिक मीटर है तो कैपिटल रेजिंग का कॉस्ट. और लाइकवाइज मेंटेनेंस रेजिंग का कॉस्ट 150 के करीब है, जो मेरा गेस्टिमेट है, जो पुराने नंबर को देख करके मैंने लिखा है. तो अब हम बात करते हैं टैम कितना है मीटर क्यूबिक मीटर. तो ये आप नीचे देखें तो कैपिटल रेजिंग जो था, अब इसमें बेसिक चीज है, जैसे हमने टेक्नो इलेक्ट्रिक को अगर का वीडियो किसी ने याद से देखा होगा तो मैंने उसमें बात की थी कि हमें टेक्नो इलेक्ट्रिक क्यों अच्छा लगा और क्यों हमने स्पॉट किया कि ये एक गेम चेंजर हो रहा है, क्यों हमें लगा कि TND बहुत बलून करने वाला है. तो मार्च 2024 में जो उनकी PPT थी, टी में जो टैम था दैट वाज मच बिगर, 3-4x बिगर देन उसके पिछले साल का टैम. पिछले क्वार्टर में भी जो PPT थी उसकी टैम का 3x 4x था. तो मैंने बोला कि ये सेक्टर एक्सपैंड करने वाला है, ट्रांसमिशन सेक्टर, और वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है. अब यहाँ पे आप देखें FY24 में जो टैम था उसको मैंने सेपरेट किया है FY25 से, ताकि यू कैन सी द डिफरेंस. एंटीथेसिस यही थी उस समय जब मैंने इन्वेस्ट किया था कि टाइम इसका लिमिटेड है. वही टाइम को समझ लेते हैं, बिकॉज अपनी एंटीथेसिस को ओवरकम करके ही कोई दोबारा थीसिस में घुस सकता है. कैपिटल रेजिंग में 174 मीटर क्यूबिक मीटर था 2024 में, अभी 100 नया होने वाला है. सो दिस ओवरऑल 274 हो जाता है. मेंटेनेंस रेजिंग में 100 मीटर क्यूबिक था, वो अब 200 नया ऐड होने वाला है, तो 300 हो जाता है. सो और ये कंपनी जो है वो मेंटेनेंस रेजिंग में किंग ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड. ये कोई कैपिटल रेजिंग में बहुत बड़ा नाम नहीं है. कैपिटल रेजिंग में
इसकी औकात नहीं होती ज्यादा करने की, छोटे मोटे काम कर लेगा, जो कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीतेगी, मेक इन इंडिया के नाम पे फिर इसको मिल जाता है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के पास ड्रेजर नहीं है, इनके पास जो भी ड्रेजर है वो उनके ड्रेजर से अच्छे हैं, तो ये उनका सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं और काम कर लेते हैं कैपिटल रेजिंग। तो बट मुद्दा ये है कि कैपिटल रेजिंग में जो पर कचरा निकालने का जो रिन्यूमरेशन है वो काफी अच्छा है। आपको वहां ऊपर दिख ही रहा है कि 300 करोड़ पर एमक्यूएम है, और मेंटेनेंस में रफली 150 उसका आधा है। तो पहले जब एक साल पहले उनकी कैपिटल रेजिंग में बहुत छोटी सी औकात थी, मतलब ज्यादा नहीं था, तो मेनली वो मेंटेनेंस रेजिंग करते थे। तो अभी भी आप देखेंगे तो 150 करोड़ एमक्यूएम और 2024 में 100 एमक्यूएम का मेंटेनेंस रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर 100 एमक्यूएम इंटू 150 कर दे, तो आपको 1500 करोड़ का टाइम यहाँ पे था जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो उस समय मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला था कि ये इसमें कितना होगा, 2x होगा, ये खुद 200 करोड़ कमा रहा है और कितना कमाएगा, अदानी भी है, बाकी लोगों भी है। तो उसमें टाइम जो है एक्सपेंशन का सीन नहीं था। बट अभी ये वाला मार्केट ही 3x हो गया है। तो ये 1500 से 4500 करोड़ टाइम, तो इसका अपना जो है जिसमें ये एक्सपर्ट है उसमें 4500 करोड़, 3x एक्सपेंशन यहीं पे हो गया। तो ये 3x तो मेंटेनेंस वाले में हो रहा है, एंड दिस इज फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट, यू कैन चेक इट। तो 3x तो इनका अपना जो होम ग्राउंड है उसमें 3x एक्सपेंशन हो रहा है। कैपिटल रेजिंग में भी 174 से 100, तो अराउंड 50-60% ग्रोथ उसमें भी हो रहा है। तो उसमें टाइम जो है नाउ 8200, ये मेरा रफ कैलकुलेशन है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 13,000 का नंबर आता है, 13,000 करोड़ का। मेरा रफ है, अगर हम ऑफिशियल नंबर्स जाएं तो FY24 में उन्होंने बोला था कि 12,000 करोड़ का टाइम है। उसमें मेजरली कैपिटल रेजिंग था, जिसमें इसकी उतनी औकात नहीं है। मेंटेनेंस तो 1500 करोड़ ही था, अब वो बढ़ के 4500 करोड़ हो गया है। तो 3500 करोड़ जो ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है थैंक्स टू न्यू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और वो जो सिल्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं। तो सिल्टेशन को भी अगर ऐड कर दें, तो पहले डिसिल्टेशन का मार्केट नहीं था, वो भी 1000 से 3000 करोड़ पर ईयर है। तो रफली ये 12,000 से 15,500 करोड़ का हो गया है टाइम। ये मैं लूज नंबर बता रहा हूँ, आपको दो नंबर मिल रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे आप देख लोगे कि ये जोड़ करके 13,000 करोड़ यहाँ पे आ रहा है मेरे बेसिक मैथ्स में, और इनलैंड वाटरवे और पोर्ट डिसल्टेशन और वो सब जोड़ करके 2,000 करोड़ और जोड़ लो, 2,500 करोड़, तो 15-16,000 करोड़ का मार्केट टाइम हो गया इस पूरा मार्केट। अब ये सिर्फ दोनों पिच पे बैटिंग कर रहा है, मतलब कि कैपिटल एज वेल एज मेंटेनेंस। तो टाइम एक्सपेंशन हो गया, तो अभी इसके लिए स्टॉक के लिए स्कोप हो गया, दैट्स द होल थिंग। तो और साथ ही साथ ये दूसरी चीजें भी कर रहा है, जो हमने बात की टग की, तो वो लाइन ऑफ बिजनेस भी, उसमें भी काफी बड़ा ऑर्डर बुक है, उसमें भी डेवलपर रोल में आ रहा है। और साथ ही साथ अभी यूनियन बजट ने कुछ टेलविंड भी दिया था, विच इंक्लूडेड एग्जम्पशन ऑन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी फॉर शिप बिल्डिंग कंपोनेंट एंड इंजन। तो ये शिप बिल्डिंग में जा रहा है, तो उसको वो सब एक्साइज और टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलेगा। साथ ही साथ ये कंपनी ने एक टनेज टैक्स रिजीम है, जो पुराना रिजीम है, कोई नया नहीं है, बट उसको उन्होंने अभी अडॉप्ट किया है FY26 में। दैट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दियर इफेक्टिव टैक्स आउटगो। बेसिकली इसमें क्या था कि आप अगर पहले क्या था कि जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, आपके पास एक शिप है, उस शिप से जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया उस पे आपको टैक्स देना होता था नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल चल रहे हो। बट टनेज टैक्स रिजीम में आप आओगे तो आप बोलोगे कि मेरा 10 टन का एक ये है, शिप है, वो पूरे साल में 300 दिन यूटिलाइज हुई और 65 डेज नहीं हुई, तो उसकी अकाउंटिंग में वो पूरे साल का नहीं लेंगे, वो 365, मतलब वो 10 महीने का लेंगे। तो उस तरीके से आपको टैक्सेशन कम हो जाएगा, मतलब यूसेज बेस्ड हो गया टैक्सेशन। सो दैट्स अ पॉजिटिव, बिकॉज उस केस में आपको यू हैव ग्रेटर फाइनेंशियल हेडरूम फॉर री इन्वेस्टमेंट इनटू फ्लीट एक्सपेंशन, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग लाइक कि आपको एक सपोर्ट मिल गया कि अगर पहले था कि आपने खरीद लिया तो जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से पैसे दो, अभी बोले खरीद लिया और यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो हम आपको रियायत दे रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ कंसेशन। तो दैट्स व्हाई दे सेड कि कहीं और से प्रॉफिट होगा तो वो एडजस्ट हो करके इनका टैक्स आउटगो वुड बी वेरी लो। समबडी इन आवर ग्रुप हैड सेड कि ही रिमेंबर, मतलब उन्होंने मुझे बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही सेड कि आफ्टर सम ईयर 1-2 ईयर हमारा पीबीटी और पैट दोनों सेम ही होगा। आई डोंट रियली नो कितना होगा, क्योंकि टैक्स जीरो होगा इसका मतलब हुआ, आई डोंट नो दैट, बट टैक्स वुड बी लो। सो इसमें अब जो है लास्ट फ्यू स्लाइड,
तो वाटरवे सब सीरीज भी हैं, वो सब लॉन्च हुई हैं। तो उसमें जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि अमेज़न ने कलकत्ता और पुणे पटना के बीच में वो शिप वगैरह स्टार्ट करने की बात की थी, वो अनाउंसमेंट था। अभी मैंने दिसंबर 15 का न्यूज़ लेटर है, दिसंबर 15 2024, उसमें ये व्हीकल वेसल लॉन्च हो गया ऑन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा में भी हो गया। तो शेड्यूल सर्विसेज हैज स्टार्टेड। तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर पे था, दैट हैज गॉट रियलाइज्ड। We'll be unpacking the shipbuilding value chain, starting with a valve manufacturer that's quietly positioning itself for the next upcycle. Join Sodden Prime on YouTube to get an early heads up before the crowd does. आपको हमारा साधन का वर्क कैसा लग रहा है, ये हमें समय समय पे बताते रहें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हम भी मोटिवेटेड रहें. That's why please do comment and do share our work so that we can do some more deep work for retail public like you. Thanks for being part of this journey. Thank you. So that's all on this, and we are not SEBI registered advisors, so we might be holding a stake in this company, and therefore our view can be biased.